रिकॉर्डिंग तो चलो 3-4 लोग आ गए हैं, बट तुम खोलना बिल्कुल 10 मिनट बाद ही, ठीक है? लक्ष्मी फ्रॉम जन्माष्टमी, लता सिंह, दुर्गा सिंह, तो कोई पार्टिसिपेंट नहीं, मतलब ये नहीं। रिसोर्स 6 लोग आ गए। और ठीक से पहले बैठो। ओपन कहाँ से हुआ? वही एडमिट ऑल करना पड़ेगा तुमको। नहीं तो ये तो कर देना, एडमिट ऑल अपना करता रहेगा ना। नहीं, क्या तुम्हें करना पड़ेगा शुरू में तो खासा के शायद 6 की 100 एंटर हो जाएंगे तो हाँ तो होने दो ना। कर दो ना, घबराते क्यों? हेलो, हाय रत्ना, हाय। आ रही है हमारी आवाज? आपकी आवाज तो साफ आ रही है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बस आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करते हैं। जी। शशांक जी, participants are joining us. ओके, रिसोर्स पर्सन आई डोंट थिंक अभी कोई नहीं ज्वाइन किए। अभी कोई नहीं ज्वाइन किया ना। लेट अस वेट फॉर 2 or 3 minutes more. हाँ? Hi, Shashank, I'm here. हाँ मैम, How are you? Hi, I'm okay. How are you? Fine, thank you. Hello, ma'am. I'm Ratna here. Hi. Hello. Hi. Nice to see you. I'll switch off my video. Hi, Ratna. Hi, ma'am. How are you? I'm good. Thank you for joining us, ma'am. My pleasure. I'll switch off the video later. Okay. I just put it on to say hi to you all. ओके मैम। Okay, ma'am. Because otherwise, I think the sound gets disrupted, no? Yeah. Yeah. Just 2-3 more minutes. We are waiting for Yeah. others to join. Yeah, sure. So how is it all going? We are starting within 2 minutes. Okay.
No, I think we must start now because so many participants have already come. Ratna, Hanji, can we start now? we have only one resource person, Poonam ma'am. No, I think we have two. Neha has also joined us. Wait a minute, let me I just. think we can wait another 3-4 Okay, minutes. because okay, it's- man. It's still 4 minutes to 3. Okay, man. Anju, can you hear us? You are saying we are not audible. कोई और तो देखा नहीं मैं यहाँ ही बैठ We have 35 participants. पिछली बार जब हमने किया था तो ऑडियो वीडियो ऑन फोटो नहीं आ रही कैमरा ऑन कैमरा अब तूने कैमरा मेरा कैमरा ऑन है ना अगर आपको जैसे कैमरा बंद कर इसको इसी को फिर से कर दो आपका कैमरा बंद हो गया और ऐसे कैमरा ठीक है अभी आपका कैमरा Hanji, Shanti ma'am भी आ गई and we have 46 participants right now. Okay, now I think हम लोगों को अब start कर देना चाहिए. जी. जैसे वीडियो वगैरह वो नहीं बन सकता Yeah. बिग बन सकती है जैसे हम ये मीटिंग अटेंड करें तो I Shashank Shekhar on behalf of CRA, CR and PD. CRA, CR and PD stands for Research and Advocacy for Child Rights and Persons with Disability. Welcome you all, including the panelists and the participants. Our is Poonam Natarajan ma'am. Welcome ma'am.
Poonam, ma'am, and I stand myself and the organization stands itself corrected by deleting the doctorate, by deleting the word doctorate, doctor from your name. मैम जो ये हम लोगों से गलती हो गई थी और you were हमारी जान के पीछे थी कि इस डॉक्टर वर्ड को हटाओ. We are deleting it. We stand corrected. और मैम you are chairperson, former chairperson, National Trust of National Trust. और आपके साथ तो मैं मुझे काम करने का काफी लंबा सौभाग्य मिला जब मैं आशा किरण कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहा था. And you were a great help to me and to the children of Asha Kiran complex also. And मेरे लिए तो मैंने आपको पहले भी कहा था आप ही सब कुछ हैं because you led me to this field. You brought me to this. Thank you, ma'am. Thank you for that. Thank you. Again, we have Miss Nina Wag. She is a founder member of NGO Alap, which works for providing living space to children with special needs. Our third speaker is Ms. Shanti Allu. I am again once more very sorry, Shanti ma'am, for the typographical error in your name. We have introduced C there in your Allu word and another G. Ma'am, may I be corrected because वो pronunciation में कुछ problem हो रही है. Okay, Olak, Shanti Olak. Olak. And yeah. G. Hi, Shanti. Hi. Hey, Poonam. So nice to see you. Yeah, lovely to see you. मैम चेयरपर्सन है मुस्कान एनजीओ की और इन्होंने बहुत काम किया है इस फील्ड में और ये द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स थे इन बच्चों के स्पेशल नीड्स बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनको साथ में लेकर और खुद अपने बच्चे के प्रॉब्लम को लेकर इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया and has been working very successfully. Thank you, ma'am. Thank you for joining us. Now we have Madam Shamra Mirza with us. She is member Delhi Commission for Protection of Child Rights. She is another person with whom I have worked very extensively, and right now we are working together also. Thank you, ma'am. Thank you, Samra, ma'am, for coming to this platform. We have Mr. Madhusudan with us. He will be projecting the views of and the problems of father's issue. I was advised by Poonam ma'am to include father's perspective also. Yeah, that's very necessary. Another very important speaker is Madam Sweta Verma. She was a speaker to our prior webinar on parenting also. She has about 18 years of experience of working with children with challenges, and she believes in an inclusive atmosphere for such children. Another important speaker and moderator is Madam Ratna Saxena, who is a co-founder of CRNPD along with me. She will introduce herself to you. She has a long background of working for children, including children with special needs. And last and the list is Shashank Shekhar. Hello, I am Shashank Shekhar and I am an advocate by profession. I am a former member Delhi Commission for Protection of Child Rights and working extensively for the cause of children and persons with disability. Thank you, and now I hand over the platform to Ratna for further proceedings. Ratna, can we record this? Yeah, session? Why not, ma'am? Why not? Why not? Yeah, we are already. No, but recording it, ma'am. We are recording it too. Achha, no, it gives the option of recording, but yeah. only if you permit it. No, no. We are giving it. We are giving the permission. Ma'am, we are recording it. I think you're already recording it. And we will send it to you. Ma'am, we are recording it and we'll share it with that's you. good. Yeah. That's good. Yeah. So thank you, Shashank ji. Thank you, Ratna. Please proceed. Thank you so much. मैं रत्ना बोल रही हूँ
और co-founder हूँ शशांक जी के साथ, जैसे उन्होंने बताया CRA-CRN-PD की. Please, can I request everyone to mute themselves? ये मैं नहीं. Can all the participants mute themselves? Savita ji. Please mute yourself, everyone. So I just welcome everyone on behalf of CRA-CRN-PD, and a little bit about what CRA-CRN-PD is. It is Center for Research and Advocacy for Child Rights and Persons with Disability. So our objective is to reach to the last child. For us, the child, the person or the child which is last, and still beyond that last child, we call it an invisible child. So for us is to reach to that invisible child, and secondly, to strengthen the PRI system so that the children who are in distress, who are vulnerable, a PRI can identify and support them. So that is what we do at CRA-CRN-PD. And this is our series of webinar for this month, which is on parenting. The last webinar last weekend we did was on parenting. What are the challenges of parenting? That was for everybody. But this during that workshop only webinar, we came out that we need to have topic-based webinars. So this one is for parenting challenges of children with special needs. So we welcome once again, and as Shangji said, we have eminent speakers with us. Poonam ma'am is there, Shanti ma'am is there, Neena ma'am is still to join, Samra ma'am has joined us, and Shweta ji has joined, but Madhusudan ji, we are waiting for you. He requested he... Hello? Actually, I have joined Neena ji. in the name of Arnam. I have joined from my son's account. Oh, that's why I couldn't recognize it. Yes, I have been a walk. Thank you, ma'am. We welcome you, ma'am. So here it's with the spirit that humans, we all have a human spirit of perseverance and courage, which no disability can manage or match even. So with this point of view, we'll start today's webinars, and we'd like to start with Poonam ma'am. So Poonam ma'am has been, please mute yourself. All the participants, you are requested to please mute yourself. करिएगा तो फिर मैं पूनम मैम को इनवाइट करूंगी. प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, या शशांक जी आपको करना पड़ेगा. प्लीज म्यूट एवरीवन. Done. So we begin with the first speaker, and I think over the 1.5 hours, each speaker will get around 10 to 12 minutes to speak, and then the participants can put their queries and questions. So as Shashank ji said, Poonam ma'am has been a pioneer in the field, and she has been a member of the law committee also, which was formed to harmonize the national legislation with the Convention on Rights of Persons with Disability. She has co-authored a book on management of cerebral palsy, and she has received lots of awards. So ma'am, we invite you, please join us, and you begin. Over to Poonam ma'am. Yeah. Poonam. Yeah. Good afternoon. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Good afternoon to all, and many thanks to Ratna and Shashank for putting this special parenting session for children with special needs. And it's always been a pleasure to work with you, Shashank. And I think it's very, so many years
with Asha Kiran and DCPCR, and it's been really nice that once again we've come together. I want to just maybe It was my privilege to start with this parenting webinar. But the first point I want to make is that for all parents, that children with special needs are more like all children. The special needs comes next. First thing is the child. So please remember that it is the child first, your child, and then we can talk about what the special needs are. I think it's very important to remember that, because many times we are only talking about the child's disability and we forget about the fact that many of the needs, जो बच्चे की ज़रूरतें हैं, जो बच्चे को चाहिए, वो और सब आम बच्चों जैसा है. So we should remember that all children are children first, and then we can have what are the special inputs that they need. I became a parent of a child with special needs 40 years ago. And I think over the 40 years, it's been amazing to watch that so many changes have happened, especially in the area of understanding that our children are not patients. Mareez nahi hai. Their disability is a condition. Their disability needs certain inputs. And I think since the most important message I want to really, as a parent myself, I would like to tell parents is that whatever the condition of the child, you should understand it very well. To empower yourself, don't leave that knowledge only to doctors and therapists. आपको भी बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये बच्चे की जो स्पेशल नीड है वो क्या क्या है. अगर थेरेपी की नीड है, अगर बच्चा चल नहीं रहा तो क्या करना है, उसको सीखना है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है, एजुकेशन प्रोग्राम में, एक्टिविटीज में क्या करना है बच्चे के साथ. तो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी क्लिनिक्स आ गई हैं, देयर लॉट्स ऑफ एंड द थेरेपिस्ट, सो एंड देयर टेंड्स टू बी अ मिस्ट्री कि हमको बस बच्चे को ले जाना है लाइक अ मेडिकल डॉक्टर. Let us demystify the condition for ourselves and understand very, very clearly what the child needs. And of course, जो भी आपका activities therapist आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे बच्चे के बारे में, वो activities अगर आप सीख लेंगे, तो आप घर में उसको कर सकते हैं. और उसको जितना होए अपने daily routine में ही उसको करिए. और जो हम आपकी फैमिली, एक्चुअली I really believe in parent empowerment and parent training, and for the whole family, whatever the activities are. A lot of children with say cerebral palsy or with intellectual disability need a lot of play activities. अब play activities सिर्फ मदर को, माँ को करने की जरूरत नहीं है. The father, the siblings, the grandparents, everybody can have a role कि मैं ये activity बच्चे के साथ हर रोज करूँगी. So otherwise, please involve the whole family in the whatever activities that you want to do. The activities are all a lot of fun activities. It's not as if, it's a very dreary, boring thing. It can be made into a lot of fun and can be made into a lot of family time. So I think it's very important to first of all understand the condition and understand what is the program. And as the program evolves, as the child changes, to learn it. जो भी लोग थेरेपिस्ट, टीचर, सब आपको उनके बच्चों की जो कमजोरियां हैं उनके प्रोग्राम देंगे. This is the program. This is what you have to do. But I think it's very important कि हम बच्चों की जो strengths हैं, जो उनकी जो चीजें वो बहुत अच्छे से करते हैं, उसको भी build करें. बहुत times होता है कि वो नहीं build होता. Like if a child is very good at painting or at singing or at a game or whatever, we must build that skill and talent of the child. Should not keep feeling कि बस मुझे जो कमजोरियां उस पे ही काम करना है.
And a lot of parents feel very guilty that I'm not doing enough. मैं कैसे इसको ज़्यादा करूं? I don't think you should feel guilty, because all children grow at a certain pace of nature. आप ज़्यादा भी करेंगे पर बच्चा तो अपने नेचर के पेस पे ही ग्रो करेगा. So make sure that the child gets the inputs, whatever they are, but there is no need कि भाई the whole day make it a big stress कि मुझे ये काम सारा दिन ही बच्चे के साथ करना है. In fact, आजकल बहुत बातें हो रही हैं कि अगर घर में है, लॉकडाउन है, नॉन डिसेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिसेबल बच्चे हैं, how does a parent manage her time? क्या करें हम के वो दोनों बच्चों को इक्वल टाइम मिले? और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं. Parents feel they have to be with the child in the online classes. Actually, with the non-disabled child, actually you don't have to be. The online classes are for the child and the teacher. But I think parents को बहुत सोचना पड़ेगा अपना कैसे. It is their day, it's their time, it is their plan. How to plan कि दोनों बच्चों को equal attention मिले. But they can also support each other. आप ये मत सोचिए कि जो हमारा बच्चा है with disability, special needs, उसको वो he and she can also support the sibling. So please treat the child with special need like any other child. They need a lot of fun. They need disciplining. They need everything that the other child needs. तो दोनों को जैसे और भाई बहन बड़े होते हैं वैसे ही करना है. I don't think it's so much a problem कि we must, how do I divide my time? How do I know some of us tend कि ज़्यादा time disabled बच्चे को देंगे. And many children who are non-disabled say, I wish I was disabled also. So ऐसी मोहब्बत नहीं आनी चाहिए, but we have to work that out. So basically, for me, I think the most important thing to give to our children is self-esteem. That's the most precious gift you can give your child. Because what happens is, many times, क्योंकि बहुत worry होता है कि oh my God, I've got this child has a disability. सारा time parents are talking about this big problem. You feel depressed, you feel stressed कि हमारा disabled child है. But our children with disabilities are very sensitive to that. And that in a way works on the child, और उसका जो आत्म सम्मान है, self-esteem, the value for themselves goes down. If a child doesn't have enough value that I am also as valuable, as important a person as the other child in the family, that can really ruin everything. I think I want to leave the parents with a message that please remember the most precious gift we give our children is that of self-esteem. We have seen so many children with special needs who बिल्कुल अपने आप को they feel so low, they cannot make eye contact because they feel they're always failing and they feel they are the cause of their parents feeling sad. So please don't let that happen. Please make your child feel that this child is definitely as important a member of the family and not a burden. Because when you do that, if you do that, अगर आप ऐसे करेंगे, that child will also participate in family life as much as every other child. So I think it's so nice that we are going to talk about parenting. बहुत लोगों के views सुनेंगे, question answer करेंगे. I wish you all the best. And my 3 or 4 messages really are that please don't think of your child as a patient. Please do not keep on comparing the non-disabled and disabled child. Please think of your child as a child first and not as a remember, self-esteem is the most important thing we have to give the value of. The children have to value themselves as important members of their family. And
let's build on their strengths. If we build on our child's strengths with special needs, weaknesses will take care of themselves. And don't keep worrying and stressing yourself. I think it's a very important, this lockdown actually is an opportunity for a lot of family time to be together, work together, play together, and have a little special time when everybody gets together and does some one game or activity or make some snack or something which brings the family closer, the siblings closer. We should not keep thinking the non-disabled child को हमको ये burden नहीं देना. It's not a burden. A child with special needs it can be as much of a joy as any other child. हमको ही अपनी सोच बदलनी है उसके बारे में. So I want to wish you all the best, and I look forward to hearing all here at the webinar. Thank you so much, Poonam ma'am. I think you've made it so simple and so easy. It sounds so easy, we can do it. So I would request and reiterate that there are participants who are asking us that we should use mixed language. And the best part you said is maintain the self-esteem of the child, do fun-packed activities as a family. और हमें सबको मिलकर वो strength बच्चे की जो है उसे strengthen करना है. तो आपकी इसी बात को लेकर के इतना आसान सहज लग रहा है. I want to move on to Neena ma'am. Though she's a professional for last 17 years in the field. Can I continue? Hello, please mute yourself, other participants. Pulkit ji. So with this highly motivating discourse from ma'am, I want to invite Neena ma'am. She's a professional for last 17 years and a mother of a young youth who is in the autism spectrum, and she has been doing a lot of work on assisted living. So we'd like to hear, ma'am, what is this assisted living? And you have been doing lots of advocacy work, you have been writing lots of articles, and how as a parent you have motivated other parents to find out community-based solutions. So ma'am, we always find in you that you says affirmation leads to belief. And when once we have that belief, it becomes a deeper conviction, and then things become to happen. So with this vision you have been working, and we'd like to invite you now, Neena ma'am. Please ma'am, over to you. Neena ma'am, you can unmute yourself. All right. Yes, ma'am. You can hear me, all of you? Yes, ma'am. Yeah. First of all, thank you, Cracker and Ratna ji, for creating this platform. And it's so lovely to meet Poonam ji and Shanti ji. उनके दर्शन हो गए आज मुझे इस बहाने. सारे पुराने दोस्त वरना कोविड के चक्कर में और बाकी. हाँ. नहीं दोस्त नहीं, वो गुरु है, मैं चेली हूँ, वो वाला है. तो anyways, तो आपने, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी. मैं इलाहाबाद से रहती हूँ, इलाहाबाद से हूँ, तो मैं हिंदी में अगर बात करूँ तो ज्यादा बेहतर है कि जी मैम, सब लोग चाह भी रहे हैं कि मैं बात करूँ. रत्ना जी, हिंदी में भी कीजिए, दोनों तरह चलेगा. हाँ जी जी. तो मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं मेरे. उनमें से जो बड़ा बेटा है वो उसकी पर्सनालिटी का एक जो प्रमुख भाग है वो ऑटिज्म भी है. और पिछले असिस्टेड लिविंग के बारे में आपने पूछा, तो कोई 10 साल पहले जब मैंने सब तरफ देखना शुरू किया और अपने से जो सीनियर पेरेंट्स थे उनसे पूछना शुरू किया कि भाई जब हमारे को बोल दिया गया है कि इनको लाइफ लॉन्ग असिस्टेंस की, और हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा के लिए हमें अभी से क्यों नहीं इसकी तैयारी करनी चाहिए. तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है? तो जब मैंने ये पूछना शुरू किया तो मुझे कुछ खास जवाब मिलना शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुछ पेरेंट्स ने जो है मुझे बल्कि
अवॉइड ही करना शुरू कर दिया कि भाई ये आ गई है और ये फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी जिसका जवाब हमारे पास है नहीं है, अभी हमारे डे टू डे के लाले पड़े हुए हैं, हम आगे का कहाँ सोचें। लेकिन मुझे वो बात कन्विंसिंग नहीं लगी। मुझे लगा कि अगर इस तरीके की बातों का कोई जवाब नहीं है, निष्कर्ष नहीं है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब तो ये तो वही वाली बात होगी कि आपको कुआं खोदना पड़ेगा अगर आपको पानी चाहिए तो। और अगर जब आप पानी पीने लगेंगे तो 4-5 आपके पास और आ जाएंगे, वो कहेंगे कि भैया जरा इससे सच्चाई निकाल के हमारे खेतों में भी डाल दो, हमें भी पानी की जरूरत है। तो उससे ये बात समझ में आई कि एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के बच्चे के लिए जो कि अपने आप सब काम करने में सक्षम नहीं है, तो आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपके बच्चों के साथ 4-5 बच्चे या कम से कम 6 बच्चे या 10 बच्चे या 50 बच्चे ऐसे और भी हों जो उनके आसपास इस तरीके की कॉमन नीड वाले लोग हों जो इकट्ठा हों और कुछ काम करें। तो इस सिलसिले में मेरी आज से कोई 10-15 साल पहले जो जर्नी ने एक मकसद कह लीजिए या एक स्पेशल फोकस से शुरुआत करी कि असिस्टेड लिविंग हमारे बच्चों को जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को हो सकता है एक मिनिमम असिस्टेंस की जरूरत पड़े, या जो हाई मेंटेनेंस या हाई नीड वाले हैं उनको शायद किसी इस तरीके के इंस्टीट्यूट में या रेजिडेंशियल केयर में जरूरत पड़े जहाँ पे उनको फिजिकली आगे चल के भी देखने के लिए वो जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से सक्षम हो। तो यहाँ पे इससे चलते हुए मैंने सबसे पहले शुरुआत करी फेसबुक पे, एक फोरम क्रिएट किया मैंने। इट्स अ ग्रुप कॉल्ड फोरम फॉर असिस्टेड लिविंग सॉल्यूशंस, जिसमें जो है मैंने इस तरीके के जिस तरीके जो सुविधाएं हैं देश में दुनिया भर में उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करी कि, और मैंने पाया कि ऐसे कई लोग हैं जो हम अकेले नहीं हैं कि जिनको इनकी इस बात की चिंता है और जो खाली डे टू डे का ही अपना दिन नहीं निकाल रहे हैं, जो कि आगे सोच रहे हैं या चिंता तो कर ही रहे हैं कम से कम। तो आज की तारीख में उस फोरम पे कोई लगभग 2000 के करीब लोग हैं, जिसमें कोई 40 ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि इसी फील्ड में काम कर रही हैं, जिनको हमने लिस्ट करना शुरू किया है, जिनके साथ बात करनी शुरू करी है कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं। शांति जी का मुस्कान भी उसमें एक पार्ट है, पूनम जी भी उसी में ही है कि व्हाट आफ्टर अस के बारे में, व्हेन वी आर देयर के बारे में हमने बातचीत शुरू करी है, उसके ऊपर प्लानिंग शुरू करी है। तो पिछले 2 सालों में मैंने अपना एक छोटी सी शुरुआत करी है आलाप नाम से, उसे असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक पर्सन्स कहते हैं, जिसमें मैंने मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक अपार्टमेंट लेके अमोग अपना जो मेरा बेटा है उसके साथ 3 और उसी के हम उम्र स्पेशल नीड व्यक्तियों को जो साथ में लेके बच्चों को वहाँ पे केयर गिवर्स और लाइफ कोचेस जिनको मैं कहती हूँ उनको रख के उनको इंडिपेंडेंट लिविंग सिखाना शुरू किया है। तो वो वहाँ पे रहते हैं, अपनी दैनिक जीवन के जो आपके रोजमर्रा के जो काम हैं जो आप और हम सहजता से करते हैं और उन्हें सिखाना पड़ता है, वो रात काम सुबह उठने से लेके रात के सोने तक के जितने काम हैं वो सब करते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, उनको सीखते हैं, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, जो काम कर सकता है उसको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसको कला में या खेल में रुचि है। तो एक आप लोगों ने शायद अगर स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में होंगे तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान सुना होगा, IEP। तो क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, तो अब एजुकेशन ही खाली एक नहीं रह जाता, उसके लिए अब आपको पूरा लाइफ स्पैन हैं, तो मैं उसको कहती हूँ इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान। तो हम उसके इन बच्चों के इनके व्यक्तित्व कैसे इनका विकास हो, जैसे कि पूनम जी ने कहा कि एक बार लेवल लग गया, वो लेवल लगा कि आप उसको खूंटी पे डाल दीजिए, उस पर धूल जमने दीजिए। अब आपके सामने एक जीता जाता इंसान है, उसको चाहे ऑटिज्म हो, चाहे उसको सेरेब्रल पैल्सी हो, चाहे उसको जो भी लेवल दिया हो आपके डॉक्टरों ने, उसके बियॉन्ड उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कैसे उभारा जा सकता है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, ये करते हुए उनके कंप्लीट इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान के ऊपर जो है हम यहाँ काम करते हैं। और अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और अक्सर जो हैं
खासतौर से अगर यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप 2 तरीके की अप्रोच रखिए। एक तो है कि शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। इस शॉर्ट टर्म गोल्स में जो है आपका जो है अगर जो रोजमर्रा की जिंदगियों में जो उसको काम करना है, अगर वो व्हील चेयर पे है तो क्या उसकी मोबिलिटी कितनी बढ़ाई जा सकती है, अगर उसका एजुकेशन में चैलेंज है तो उसको NIOS से या असिस्टिव टेक्नोलॉजी से उसकी पढ़ाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो तो आपने करना ही करना है और आई एम श्योर आप लोग कर भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म गोल पे भी आज से ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश में जो हमारे जो स्पेशल नीड वाली जो आबादी है वो अब जाके जो है अब वो ग्रो होने लग गई है। अब वो सब जो है 15-20 साल पहले जब मिले थे तो मोस्टली सब अर्ली इंटरवेंशन के मोड में थे, या ये थेरेपी कर लेते हैं, वो थेरेपी, कोई स्पीच के पास जा रहा था, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा रहा था। लेकिन अब आपका बच्चा अगर स्कूल एज से निकल आया है और कॉलेज में जाने लायक उसकी कैपेसिटी नहीं है, या कॉलेजेस के बारे में तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से बहुत कम NGOs है जिनके मैंने सुना। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हम स्कूल तक रह जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉलेज के बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं है, या बहुत कम इक्के दुक्के जो मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, 1-2 उंगलियों पे जो है खत्म हो जाते हो, तो मैंने इनिशिएटिव सुने हैं। तो बहरहाल जब एजुकेशन का ऑप्शन जब खत्म हो जाता है तो अब हम बात करने पाते हैं कि वो क्या करेंगे और कैसे रहेंगे, या कहाँ जाएंगे काम करने और कहाँ रहेंगे। तो उसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको आज से ही देखना शुरू करना चाहिए, चाहे आपका बच्चा 6 साल का हो या 16 साल का हो या 26 साल का हो। अगर वो आपका बच्चा 26 साल का हो और अभी तक आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है इस बारे में, तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो इसलिए जो है आप अपने आसपास देखिए क्या फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर बात करिए। आप लोग सुन पा रहे हैं? बिकॉज मुझे 1-2 लोगों को आ रहा है वी नॉट एबल टू हियर। जी मैम, 1-2 लोग लिख रहे हैं कि वो नहीं सुन पा रहे, बाकी तो हमें तो फिर उनका इंडिविजुअल नेट का We can hear you ma'am, we can hear you. Yeah, others can. ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूं? Yes ma'am. हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जहां तक पूनम जी ने बोला वो बहुत अच्छा है कि लेवल्स के ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि इंसान का बच्चा है और उसके सीने में भी वही दिल धड़कता है जो आपके और हमारा धड़कता है। सबसे पहली जो एक बात मैं कहना चाहूंगी पेरेंटिंग के बारे में, स्पेशली इन पेरेंटिंग के बारे में, अक्सर जो, क्योंकि मैं ऑटिज्म के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, and most of the autistic kids have problem with communication and many are them are mostly non-verbal। तो ये assume कर लेते हैं क्योंकि ये बोलता नहीं है तो सुनता भी नहीं होगा। तो ये कहाँ का लॉजिक है? और अगर सुनता नहीं होगा तो हम उसके सामने कुछ भी उसके बारे में बोलें कि अरे देखिए ना ये तो कुछ सुनता नहीं है, इसकी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही। आपका बच्चा बैठा हुआ है और आप उसके सामने यही बातें कर रहे हैं। अगर आप ये चीज आप अपने रेगुलर बच्चे के सामने करके देखिए, वो आपको 2 मिनट में आपकी ऐसी तैसी कर दे, आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे कहा। लेकिन क्योंकि ये मूक बच्चे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये इनकी सोचने और समझने की क्षमता भी कम है। ये गलत है। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 3-4 तरीके की होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को ही हम एक पूरा मापदंड मान के किसी एक बच्चे की हम पूरे वजूद के ऊपर एक लिमिटिंग ठप्पा ना लगाएं, वो बड़ा डैमेजिंग है सबसे ज्यादा। और खुद ही घर में अपने ही बच्चों में फर्क ना करें जस्ट बिकॉज। और एक रिवर्स भी होता है कि क्योंकि वो स्पेशल नीड है तो उसको हम बिगड़ने दें कि अरे भाई बेचारा इसको की बदतमीजियां भी बर्दाश्त करें। नहीं, वो भी बैलेंस होना चाहिए कि बैड बिहेवियर इज बैड बिहेवियर, टेंट्रम इज डिफरेंट। अगर किसी को मेल्टडाउन हो रहा है सेंसरी प्रॉब्लम के साथ तो वो एक अलग चीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो एक मेन स्ट्रीम में आए तो उसके इंस्टिंक्ट को डेवलप करना, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है उनके लिए, क्योंकि उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसे किक इन करेगा। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जिनके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैम छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। और मेरे पार्टिसिपेंट्स भी अपने अपनी क्वेरीज और सवाल लिख रहे हैं, तो क्या हम उनको सबको सारे स्पीकर्स के बाद में लें या
नहीं पहले ठीक है, एक जैसे बोल रहे जो शिल्पा जी आप लिख लीजिए फोरम फॉर असिस्टेड लिविंग सॉल्यूशंस, ये नाम से है। मैं फोरम फॉर जी असिस्टेड सॉल्यूशंस करके ये एक फेसबुक पे ग्रुप है, इस नाम से आप ऐड कर लीजिएगा जिसको भी इस चीज में आना है। और ये पूरा नॉलेज हब है इसमें कि हम रहेंगे कहाँ और करेंगे क्या, इसके ऊपर फोकस रहिए। और कोई किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को हम लोग एंटरटेन नहीं करते हैं, ये मैंने ही शुरू किया है कोई 4 साल पहले से जी। तो मैं पार्टिसिपेंट से कहूंगी कि वो इस फोरम पे जाएं, चेक करें, और अगर और क्वेरीज हैं या तो हमारे को लिखें या फिर आपके पास लिखें। आप मेरा ईमेल आईडी भी हाँ मैम शेयर कर देंगे बाद में, दे दीजिएगा। कोई कैरियर प्लान्स के बारे में स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स जो है बात कर रहे हैं कैरियर प्लान के बारे में, तो देखिए एक तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन में हैं आपको एक अभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन का फील्ड अभी शुरू ही हुआ है, तो इसमें तो बहुत स्कोप है अभी आगे जाने का। लेकिन एक और नीश सेक्टर जिसको हम ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति जी इज वेरी मच पार्ट ऑफ इट एंड पूनम जी को भी मैं उसमें लाने वाली हूँ, उनको जोड़ने वाली नहीं है, बिकॉज शी इज अ ग्रेट रिसोर्स पर्सन एंड शी इज एन इंफॉर्मेशन पावर हाउस। असिस्टेड लिविंग का वो एक सेक्टर की तरह भी आएगा जिसमें हम 24/7 इन बच्चों को इन जो कि ग्रो होंगे, जो 16 साल से लेके 60 साल तक की उम्र का एक अगर एक एवरेज लाइफ स्पैन रखें तो उनको कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर काम करने के लिए ये एक कैरियर काउंसलिंग का भी एक सेक्टर जी नॉट हाँ बिल्कुल कैरियर में ये एक चीज है जिसके ऊपर भी ये लोग फोकस कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी आएगी जितने लोग आएंगे अच्छे से पढ़ के आए। और आई डोंट नो कोर्सेज का, जहां तक मुझे याद है जब एक स्पेशल एजुकेटर आते हैं तो उनको रियल लाइफ प्रैक्टिकल इतना होता नहीं है कॉलेजेस से, तो उनको जरूर हमारी तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आके इनको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, बतौर वॉलेंटियर ये आए और उससे उनको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। धन्यवाद मैम। और आप अभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपसे डिस्कस भी करना चाहेंगे। मैं अब शांति मैम को इनवाइट करूंगी, लेकिन हमने ये शांति मैम के लिए सुना है कि वो कहती है कि पहले वो करो जो जरूरी है, ठीक है, फिर वो करना शुरू करो कि जो पॉसिबल है, और जब पॉसिबल की आदत पड़ेगी तो हम कभी ना कभी इम्पॉसिबल भी कर जाएंगे। देखिए रत्ना जी, मेरी सिंपल सी फिलॉसफी थी कि जब हम अपने एज अ मदर या फादर, जब हमें एक डॉन्टिंग एक पहाड़ दिखता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको कहा गया है ये स्पेशल नीड है, ये जिंदगी भर या तो बोल नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएगा, इसकी शादी नहीं हो सकेगी, सुना ही नहीं, तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त आ जाती है कि जो हम क्या नहीं कर पाएंगे या कर सकते हैं, और उसके बनिस्बत एक छोटी सी लिस्ट आ जाती है जिसमें कि हम लिखा होता है कि मैम आपकी आवाज तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। जो आप देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो हमने सुना है, और हम वही कह रहे हैं कि शांति जी का भी यही एक मैसेज है कि जो फहरिस्त आप कह रही हैं, तो अब हम शांति जी को इनवाइट कर रहे हैं मैम कि वो जो हमने मुस्कान बनाई है, और मुस्कान के काफी लोग हमारे साथ आज जुड़े भी हुए हैं इस पे, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ काउंसलर्स हैं, उनका स्टाफ भी है। तो उस मुस्कान के बारे में मैम आई क्योंकि वो पहले एक प्रोफेसर थी लेडी श्रीराम में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। वॉलेंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया और अपनी लीडरशिप उन्होंने मुस्कान में दी। अब वहां पे उनको जो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मिले हैं, और उनके जो आपके साथ भी उन्होंने काम किया है, और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि शांति मैम आप आइए और अपने एक्सपीरियंसेस एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेशनल सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और मैम नीना मैम आप बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो शांति मैम, ओवर टू यू नाउ।
शांति मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, thank you Ratna ji for creating this opportunity for so many people to share whatever they have learned, and particularly since it's a forum where you have invited a lot of parents, that it has been a wonderful journey. Parenting of any child is a very maturing experience. और जब बच्चे में किसी तरीके की डिफिकल्टीज हों तो और भी ज्यादा आपकी समझ बनती है और भी ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। अच्छा, मैं शुरू करूंगी। पूनम जी ने एक बात कही थी कि बच्चा पहले बच्चा है। जी मैम। मैं ये मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हर स्टेज ऑफ लाइफ बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी भी और व्यक्ति में होती है। इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, देन यूथ है, देन मैच्योर एडल्टहुड है एंड ओल्ड एज। और ये सारी अपनी, जैसे हम किसी भी इंसान के साथ होता है कि हर स्टेज अपनी सी नीड लेकर आती है, और अगर हम सेंसिटिव रहें, परसेप्टिव रहें उन नीड के साथ, तो बहुत बढ़िया एक तरीके का ना खाली हमारे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, अपना भी डेवलपमेंट उसके साथ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने जैसे सब पेरेंट्स के साथ होता है, जब शुरू में पता चलता है तो लगता है जैसे आसमान नीचे आ गया, धरती पर आ गया। बट जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करते रहते हो तो एक चीज नजर आती है, वो ये है कि देखिए, इंसान को प्रकृति ने का सबसे बड़ा जो योगदान या खासियत है कि इंसान में सीखने की क्षमता बहुत होती है। तो कैसा भी कोई कंडीशन क्यों ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लें, और हर बच्चा अब सीखने के लिए, डेवलप होने के लिए उसको नर्चरेंस चाहिए होती है, उसको एनकरेजमेंट चाहिए होता है, उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो अगर ये सब चीजें हम प्रोवाइड करते चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया एक मतलब मैं ये कहूंगी, वन ग्रोस इज ए वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइसली यू सी डेवलप्ड। एंड एक चीज मैंने और देखी है, जब शुरू में जिन दिनों मैं अपनी फीलिंग से स्ट्रगल कर रही थी, मैंने एक चीज देखी कि इतना जेस्ट फॉर लाइफ है हर व्यक्ति में, और इतना कुछ सीखने के लिए इनिशिएटिव है। और एक्चुअली मुझे तो इस चीज ने बहुत इम्प्रेस किया कि एक चीज को सीखने में बहुत टाइम लग भी रहा है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो उसी चीज को 100 बार करने के लिए तैयार है। जैसे मुझे याद है जब मेरा बेटा जूते के शूलेसेस बांधने की सीख रहा था, या अपने शर्ट में बटनिंग अप सीख रहा था, तो वो 2-3 महीने कोशिश करता रहा उस चीज को करने के, एंड अल्टीमेटली ही लर्न। तो हमारा क्या उसमें रोल था? हम खाली कॉन्फिडेंस उसको दे रहे थे, हम उसको बहुत छोटे अचीवमेंट को भी बहुत एप्रिसिएशन, वो जो कि बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है किसी भी पेरेंट के मन में। तो इतना सब कुछ अंदर है, एंड ऑफ कोर्स जो एक व्यक्तित्व की सरलता और सहजता है वो इतनी ज्यादा टच करती है कि मुझे तो ये लगने लग गया इतने बढ़िया इंसान है, और इनको रिकॉग्नाइज, और जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, समाज है, उनकी खाली कमजोरियों को देख रहा है, हालांकि इतने स्ट्रेंथ्स हैं, सो मच सो कि बहुत सारी वो चीजें हमें अगर अपने अंदर कल्टीवेट करनी हो, जैसे उनका है कि छोटी छोटी चीजों में इतना खुशी ढूंढ लेते हैं। उसी के साथ साथ हर एक के लिए उपनाम से हमारे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। तो जब इस तरीके की इंसानियत
आप पहचानना शुरू कर दोगे तो डिसेबिलिटी विजिबिलिटी कहीं नहीं रहता, तो दिमाग में भी नहीं रहता। मैं तो कहूंगी कि मैं एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये समझती हूँ मैं कि इन बच्चों ने ऐसा जिंदगी का लेसन सिखाया कि जिस डिसेबिलिटी से मैं तो कंप्लीटली डाइवर्सिटी पे आ गई कि हर व्यक्ति अपना अलग अलग एक वर्ल्ड व्यू लेकर आता है, और अगर हम उस वर्ल्ड व्यू को समझ के उससे कनेक्ट करना शुरू करें तो इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप बन जाती है। बट यहाँ पे मैं 2-3 चीजें टच करना चाहूँ कि क्या है जो कि हमें एज पेरेंट्स रोकता है इन सब चीजों को समझ पाने के लिए या उनके लिए अवेयर हो पाने के लिए। मैं कहूंगी 2 खास मुद्दे हैं इस मामले में। एक तो गाइडेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन मिलने के साधन नहीं है, सर्विसेज नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक से स्कूलिंग नहीं है, अप्रोप्रिएट स्कूलिंग नहीं है, और सारी लाइफ टाइम की जो हमारी और आपकी नीड है वो सारी हमारे बच्चों की भी है, चाहे वो ग्रो करने की है, सीखने की है, काम करने की है, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल पाने की जो एक इच्छा होती है उसके लिए है, और इमोशन है मतलब बहुत सारी चीजों में, और जो हम कहते हैं लेजर या एंटरटेनमेंट, सोशल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें एकदम उसी तरह की हैं। तो एक तरफ तो ये सर्विसेज नहीं है, तो पेरेंट्स को इतनी, मैं कई बार, दैट इज व्हाई यू सी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इट वाज comparatively easy for me to understand the impact of such things। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया, बहुत छोटा सा था वो 2-3 साल का, कि जो कुछ मैं सीख रही हूँ मुझको कुछ ना कुछ करना है ताकि बहुत सारे बच्चों की और बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ सर्विसेज मिल पाए। दूसरा एक और चीज मैं एज पेरेंट कहूंगी कि हमें अपनी जो साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नीड बड़े आड़े आती हैं हमें अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने में और उनको रिस्पेक्ट करने में, ये बहुत आड़े आते हैं। किस तरह से? जैसे कि हम अपने बच्चों के, मतलब समझिए वो हमारी जिंदगी बन जाते हैं, और उनके अचीवमेंट्स हैं, उनके फेलियर्स हैं, वो सब हमारे अचीवमेंट्स और फेलियर बन जाते हैं यहाँ पर। और ये किसी भी बच्चे के साथ, चाहे बच्चे में कोई खास डिसेबिलिटी हो या नहीं भी हो, हम इस तरह से जब एटीट्यूड रखते हैं तो हम बच्चे के विकास को बहुत कुंठित करना शुरू कर देते हैं। भाई हर इंसान अपनी एक प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है, अपनी एक पोटेंशियल, अपनी एक एबिलिटीज लेकर पैदा होता है। एज ए पेरेंट हमारा तो काम खाली ये है कि हम ऐसी अवसर उसके लिए क्रिएट करें ताकि वो सब जो उसके अंदर एक ह्यूमन पोटेंशियल है वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सके, रादर देन कि मेरा बच्चा ये नहीं बन पाया, मेरा बच्चा ये पढ़ेगा नहीं या ये बनना चाहिए, उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। देखिए एज ए पेरेंट मैं सोचती हूँ हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चे के विकास में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने की है, ना कि अपनी एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर लादने की है। जैसे जैसे हम इन चीजों को समझते चले जाते हैं, हमें जो सोसाइटी का, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि people are not, they do not have bad intention, they don't know, and that is why sometimes they react in a way which is not very favorable for the family or for the child। तो वहां पर तो हमारा काम ही ये बन जाएगा कि हम सोसाइटी को में वो जागरूकता ले आए। और मैं कहूंगी कि ये 35 साल का जो मुस्कान का एक्सपीरियंस है, शायद ही कभी होगा कि लोगों ने हमारा साथ ना दिया हो या लोगों ने हमें समझा ना हो, क्योंकि हमने उस जागरूकता, उस सही तरह की समझ लाने की कोशिश, और खाली बातों से नहीं, हमने वो सुविधाएं क्रिएट की अपने जो, बिकॉज मैं प्राइमरली, हम लोग मुस्कान इज वर्किंग विद
एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो हमने सुविधाएं की ताकि उनको डेवलप ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले, और जिसमें ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ऑफ कोर्स तकरीबन 8-9 साल पहले हमने असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी भी क्रिएट की। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं, ऐसा इंस्टेंस मुझे समझ नहीं आया, मैंने देखा कि जिसमें मैं कहूँगी कि हमने कोशिश की कि अच्छा ये शुरू करते हैं काम, और हमारे बच्चों ने हमें उसमें सक्सेस ना दिखाई हो। यहाँ तक कि अब सारा मतलब इतना कुछ करते हैं और इतने डेडिकेटेड है अपने काम के लिए कि मैं तो दिन रात उठते बैठते उनके जीवन से लेसन्स लेती रहती हूँ। यहाँ तक कि देखिए असिस्टेड लिविंग में भी हम लोगों ने, पूरी टीम ने ये सोचा कि भाई हम क्योंकि तब तक हमने देख लिया अपने ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, और हमारे बहुत सारे बच्चे तो 35 एक लड़के लड़कियां बाहर होटलों में काम कर रहे हैं, तो हमने ये देख लिया कि बहुत कुछ सीख सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट एंड जस्ट सी व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वी नीड टू मेक एंड बिल्ट अपॉन देयर लर्निंग। तो हमारे यहाँ जो असिस्टेड लिविंग में है, एक दो लोग जो हैं वो लॉन्ड्री करते हैं, एक दो लोग किचन में जाके हेल्प करते हैं कुक की, एक दो लोग अच्छा, और सबके सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे के लिए सेंसिटिव हैं। हमारे पास एक काफी तकरीबन 60 साल का राजीव मेहता करके हमारा रेसिडेंट था, और मैं डेरा में जब भी वहां पे गई, मुझे कई बार मौका मिला कि कोई ना कोई बच्चा राजीव के साथ कभी उसको कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है, या उसके साथ कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। इतना खूबसूरत वातावरण हमारे बच्चे तैयार करते हैं कि हमें ओपननेस ऑफ माइंड रखना चाहिए, अंडर एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए। हर एक की जिंदगी बहुत बेशकीमती है, बहुत कीमती जिंदगी है, और हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में पूरी तरीके से उसका आनंद उठाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस तरीके की सुविधाओं को, अवसर को, एटीट्यूड्स को क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू मैम, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी टोटली लिख रहे हैं वी एग्री विद यू, और रिकॉर्डिंग की मांग हो रही है, और वी आर एग्रीइंग विद यू। वेल सेड शांति मैम। और पुनीत, माय सन, हाय ही इज 44, और मैं बताती हूँ लॉकडाउन में ये लड़का ही सच अ हेल्प, सारे दिन ये बनाता है, ही इज मेकिंग गिफ्ट बैग्स, और मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता, अपने आप करता रहता है सब। दिखाइए, दिखाओ बेटा, ऐसे ऐसे। Hi Puneet. Hi. Hi Poonam. How are you? Nice to see you. Yeah, he's an old friend of mine. Hello Poonam ji. Yeah, hello. आबा, आबा, ये मेरे पैर के हार गई हो। थैंक यू पुनीत। क्या है? शांति जी, आई एम सीइंग योर सन फर्स्ट टाइम। हैं जी? मैं आपके बेटे को पहली बार देख रही हूँ। अरे, इस सो? मैं अभी तक मिली नहीं। देख लो अच्छी तरीके से, ये देख लो। घर आऊंगी मैं तुम्हारे। हेलो पुनीत। हाँ, जरूर जरूर। Thank you ma'am for allowing him to join us. It is such a Can pleasure. we move further on the webinar? Yeah, please.
So let him be us, and if he is hearing us, so he will be part of it. अब मैं मैम अपनी हमारी नेक्स्ट स्पीकर है सामरा मैम, Samra Mirza. She is presently member for Delhi Commission of Protection of Child Rights, and she has 25 years of her experience in service and training children with special needs. Samra ma'am, can I see you? Where are you? Hello ma'am. Hi ma'am, how are you? Thanks for joining us. And she has been providing services with community-based rehabilitation program, और जिससे उनका जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और अपना किस तरह से वो जीविका के लिए भी काम करें वो भी मैम उनको बहुत सारा सपोर्ट दे रही हैं। और उन जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं बच्चे, आज कमीशन में रहकर भी उन लोगों के लिए काम हो रहा है, मेंटली डिफरेंटली चैलेंज बच्चों के लिए भी काउंसलिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी। तो मैम सामरा मैम, we request you to please continue with us. मैम आप कहाँ गए? हाँ वही आई थिंक आप मुझे सुन रही हैं मैम? हाँ सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, सुन लीजिए। कुछ एक्चुअली कुछ अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ जी कोई नहीं, आपको हम सुन रहे हैं। जी 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 मैम। थैंक यू रत्ना जी। हेलो, थैंक यू रत्ना जी, थैंक यू शशांक जी। जी मैम मैं अपने आप को अनम्यूट कर रही हूँ, आप शुरू बात कीजिए। हाँ थैंक यू रत्ना जी, थैंक यू शशांक जी, और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो स्पीकर्स आए हैं, उनका बहुत खैर मकदम है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कम से कम 2000 से और 2500 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। बहुत से बच्चे उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड भी हैं, मेंटली चैलेंज भी हैं और ऑटिस्टिक भी हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है उनको, और बहुत से जो हैं वो ऑर्थोपेडिक भी हैं। मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हम उनको कुछ ये कहें कि डिसेबिलिटी उनकी कहीं आड़े आती है, कहीं मैं नहीं देखती हूँ। मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने ये देखा है कि 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चे जो हैं वो हम लोगों से, एक रेगुलर इंसान से कहीं कम होंगे। बहुत से बच्चे जो हैं वो एक लड़का है, वो प्यूमा बैग की उसकी फैक्ट्री है और प्यूमा बैग बनाता है वो, और यहाँ तक कि उसके अंडर कम से कम 200-250 आदमी काम कर रहे हैं। उसको पहले मैं ये आप लोगों को एक दो अपने केसेस शेयर करना चाहूंगी कि इसमें ये नहीं है कि मैंने कुछ किया है, पेरेंट्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया है। पेरेंट्स ने बहुत मतलब उनको टाइम दिया और ये बात समझी है कि हाँ वाकई ही वो कुछ कर सकते हैं। जब एक बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आता है घर में, पहली बात तो जो रेगुलर बच्चे आते हैं, मतलब जब एक फैमिली में एक बच्चा आता है तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं लोग बाग कि हाँ ये बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जब देखते हैं पेरेंट्स कि हाँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो उनकी जो वो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी मर चुकी होती हैं और उन लोगों को बहुत धक्का लगता है। मैंने ये चीज बहुत करीब से देखी है, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है, इसलिए बता रही हूँ। तो जब वो लोग बाग ये सोचते हैं कि हाँ अब ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं ये तो मतलब एक स्पेशल नीड है तो ठीक है, स्पेशल नीड उस पर एक लेबल लग जाता है। जैसे पूनम जी ने कहा है कि उनकी भी एक डिग्निटी है और वो लोग भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं भी इस मानती हूँ कि सिर्फ उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हम ये ना सोचें कि हाँ ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अर्ली इंटरवेंशन अगर बच्चे को मिल जाए
तो अर्ली इंटरवेंशन में ये है कि हम लोग ये मान के चले कि हाँ ये नहीं कि हाँ डॉक्टर ही बनेगा, नहीं इंजीनियर ही बनेगा, नहीं ये तो टीचर ही बनेगा या किसी ऑफिस में ही काम करेगा। जो उसकी एबिलिटी है, डिसेबिलिटी को हम एक तरफ रखें और जो उसकी एबिलिटी है उस पे हम वर्क करना शुरू करें। जैसे प्री वोकेशनल, शांति जी ने कहा है कि प्री वोकेशनल स्किल। हेलो जी, हेलो हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। वीडियो ऑन करिए। हेलो, हाँ मैम, प्लीज प्रोसीड। जी जी, तो आप अपना वीडियो ऑन करिए तो अगर वीडियो आपको देख भी एक्चुअली सके। मेरा ऑन रहा है, कुछ बड़ा हो गया इसमें। अभी जब आप बोल रही, हाँ अब आ गया। अब आया? जी जी जी। अच्छा अच्छा जी। तो जो हम उसकी डिसेबिलिटी ना देखें, हम उसकी एबिलिटी देखें। मैंने जैसे शांति जी ने भी कहा है, पूनम जी ने भी कहा है और मैम ने भी कहा है कि जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दें। एक रेगुलर जो इंसान होता है, एक बच्चा होता है रेगुलर, मैं उसको रेगुलर कहूंगी कि रेगुलर इंसान जो होता है वो माहौल में सब कुछ देख देख के सीख जाता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को हमें बस थोड़ा सा सिखाना पड़ता है। जैसे जो स्किल्स हैं, अगर आप घर में भी रह के करें, फाइन मोटर है, क्रॉस मोटर है या मनी कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हम अगर घर में रहकर घर के माहौल में अगर हम उनको सिखाएं तो काफी हद तक जो है वो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा, जैसे मैं कुछ पेरेंट्स के लिए ये यहाँ पर पेरेंट्स भी होंगे आई थिंक, तो पेरेंट्स के लिए कहूंगी कि जैसे फाइन मोटर है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो हम घर की ही सामान से जो डेली एक्टिविटीज हैं, डेली लिविंग स्किल्स हैं, उनसे ही हम करवाएं। हम लोग ये ना सोचे कि हाँ उसके लिए हमें एक टॉय की जरूरत होगी या ऑक्यूपेशनल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी जरूरत होगी या फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होगी। वो सारी चीजें हम लोग ना अगर लेके हम घर की ही चीजों से करवाएं। जैसे अगर आई हैंड कोऑर्डिनेशन है या फाइन मोटर स्किल है, थम हमें थम का यूज करवाना है, फिंगर और थम का, तो जैसे घर में है, अगर मम्मी है तो एक क्या बोलते हैं, कुछ दाल साफ कर रही हैं या कुछ पत्ते तोड़ रही हैं, सब्जी साफ कर रही हैं, तो बच्चे को भी लगा सकते हैं, बच्चे को भी उसके साथ बिठाएं और बच्चे को ये बोलें कि आप करवाइए। तो धीरे 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 हमें लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये कि धीरे धीरे जो है बच्चा वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ हम बैठ के ही उसको करवाएं। हेलो हेलो, जी मैम कहिए, सुना जा रहा है। आई We can थिंक hear मेरे, you, ma'am. हेलो Ma'am, we can hear you. हेलो, Yes, Samra ma'am, we can hear you. जी 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 मैम। Continue, तो ma'am. जी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये ना सोचें कि हाँ बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम या हमें जो स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, उसी में ही बच्चा जाए या स्कूल में ही बच्चा सीख सकता है, स्पेशल एजुकेटर ही सिखा सकती है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और जो डेली लिविंग स्किल्स है उसी में ही रहकर ही सिखा सकते हैं। अब मनी कॉन्सेप्ट है, अगर बच्चा, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ सब्जी वगैरह खरीदने जा रहे हैं, तो हम बच्चे को साथ लें, बच्चे से हम जो सब्जी है उससे बोलें कि आप बात करिए, आप सब्जी लीजिए और पैसे भी हम उसी को दें कि आप जो सब्जी वाला है उसको इतने पैसे दीजिए। इसी तरह टाइम का है, अगर टाइम कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है तो टाइम में भी हम लोग घर में ही रह के टाइम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं।
सारी एक्टिविटीज जितनी भी स्किल्स हैं हम घर में ही रहकर कर सकते हैं। हमें ये जरूरत नहीं है कि हम स्पेशल एजुकेटर के ही पास जाएं या स्पेशल स्कूल्स में ही ये सारी एक्टिविटीज बच्चा कर सकता है। दूसरा एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि एक बिहेवियर प्रॉब्लम काफी बच्चों में हो जाती है। वो क्यों? कि एक बच्चे की नीड है, एक बच्चा बैठा है, उसको वॉशरूम जाना है, मान लिया उसको वॉशरूम जाना है और मम्मी लगी हुई है काम में। मम्मी जो है वो बच्चा मतलब आवाज लगा रहा है या कुछ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मदर उसको नहीं सुन रही है, वो इतने काम में बिजी है, या फादर है वो नहीं सुन रहे हैं, या पास में भैया है वो नहीं सुन रहा है, या बहन है वो नहीं सुन रही है, तो वो और उसको अटेंशन नहीं मिल रही है। तो वो अटेंशन पाने के लिए क्या करता है कि वो अपनी जो बिहेवियर है वो इस तरीके से करेगा, या तो गुस्सा करेगा या कुछ मारेगा, या कि उसको एकदम से अटेंशन मिल जाए, या चीखेगा या चिल्लाएगा तो उसको एकदम से अटेंशन मिल जाती है। उससे क्या होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं कि अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है, एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है और बच्चे का ये है कि वो अटेंशन पाने के लिए कि अच्छा मैंने ये हरकत की थी, ठीक है, मैं चिल्लाया था तो ठीक है, मुझे अटेंशन मिली थी, जल्दी से आ गए थे सबके सब। तो वो बिहेवियर बढ़ते 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 वो इतना ज्यादा हो जाता है कि शायद हम लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग पेरेंट्स को हमें गाइड करना चाहिए, और जो कम्युनिटीज में लोग हैं हमें उनको गाइड करना चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस हमें करनी चाहिए। मैंने कमीशन में रह के बहुत सारी जन सुनवाई भी की है, जहां पर पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स हमने सुनी है, और वहां पर मुझे जो काफी पेरेंट्स की प्रॉब्लम लगी है वो एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की लगी है, और दूसरा इस चीज की बहुत सारी लगी कि मैम हम लोग स्पेशल स्कूल्स तो है नहीं हमारे पास, हम कहाँ जाएं, हम लोग कैसे, बच्चा जो है वो बिहेवियर प्रॉब्लम है उसकी मैम, स्कूल वाले लेते नहीं है, या पड़ोसी जो हैं वो शोर मचाते हैं कि आपका बच्चा तो शोर मचाता है, या पड़ोसी उसको अच्छी हिकारत की नजर से देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। पेरेंट्स में जो खाली मम्मी ही नहीं या खाली फादर ही नहीं, जो उनके बहन भाई हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। हम ये सोच के कि नहीं इसका भाई तो बहुत बर्डन है इसके भाई के पास तो पढ़ाई का, नहीं वो हम उसको इसका कोई भी काम नहीं देते या ये नहीं संभाल पाएगा, तो हम थोड़ा अवॉइड खुद ही कर देते हैं। या मदर सोचती है कि ठीक है सिस्टर है तो सिस्टर के ऊपर क्या बर्डन डालना, लेकिन हम ये हमारी सारों की जिम्मेदारी बनती है। अगर फैमिली में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी उसको हम लोग उसको एक साथ लेकर चलें और अपनी ही तरह उसके साथ बिहेव करें। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि हमें एक तो कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है करने की, और दूसरा ये कि जैसे एक शायर का कुछ पंक्तियां हैं कि यूं तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं सभी, लेकिन रहनुमा ठीक हो तो राही भटकते कम है। तो रहनुमा जो है वो एक टीचर भी हो सकती है, एक पेरेंट्स भी हो सकता है, एक पड़ोसी भी हो सकता है, एक भाई भी हो सकता है, एक बहन भी हो सकती है। तो रहनुमा हम लोग अगर बन जाएं सभी के, ये ना सोचें कि ये जो है वो एक फादर की ही जिम्मेदारी है या एक मम्मी की ही जिम्मेदारी है। अगर हमारे पड़ोस में अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो हमें चाहिए कि हम उसकी हेल्प करें, किसी भी तरीके से करें। अगर 5-5 मिनट भी सारी कम्युनिटी देगी एक बच्चे को, तो मैं सोच सकती हूँ कि जैसे मेरे 2-2.5 हजार बच्चे आज इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो इसी तरीके से सभी बच्चे जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सामरा मैम। और अवेयरनेस की बात की, और जो बात पूनम मैम भी कह रही थी वो आप भी कह रहे हैं कि सबको मिलजुल कर ही इस बच्चे के साथ जुड़ना है और ख्याल रखना है और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम सीख रहे हैं बाकी सबके एक्सपीरियंस से, तो यही है कि हमने उसको अकेला नहीं रखना है, अलग नहीं छोड़ना है, और अपने में से एक समझते हुए उसे इन्वॉल्व रखना है। थैंक यू सामरा मैम। अब हमारे अगले स्पीकर थे मधुसूदन जी, बट उनसे अभी बात हुई, वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मधु जी नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, तो मैं अपनी अगली स्पीकर को फिर आमंत्रण देना चाहूंगी, श्वेता जी। श्वेता वर्मा जी, कैन वी सी यू? श्वेता, हाँ, एक मिनट। यस, वेलकम अगेन। श्वेता हमारी लास्ट वीक भी हमारी स्पीकर थी, और उनका जो भी काम है वो कई एनजीओ से जुड़ी हैं, समाधान से और आदि से, मेंटल हेल्थ पे, डिसेबिलिटी बच्चों की राइट्स को लेकर, और उनको एडवोकेसी कर रही हैं, उनको टीम मैनेजमेंट कर रही हैं, किस तरह टीम्स उन बच्चों के साथ काम करें, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ काम करने के, डिसेबिलिटी राइट्स पे क्या क्या उन्होंने भी चैलेंजेस देखे, और जो अब उन्होंने अपना 1 साल पहले एक इनिशिएटिव शुरू किया है, गिनीज प्लैनेट, इस तरह के बच्चे वहां भी वो काम कर रही हैं। तो मैं श्वेता जी आपको इनवाइट करती हूँ, आइए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। वेलकम श्वेता जी। थैंक यू रत्ना। मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ब्रॉडली जो पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहती हूँ अबाउट पेरेंट एज पेरेंट्स of children with disabilities and interaction between parents, एक वो पॉइंट है, एक सेक्शन। और दूसरा सेक्शन है जहाँ पर मैं गिनीज प्लैनेट में ब्रॉडली हमारा विजन क्या है, ओनली स्पेसिफिकली विजन, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर। तो बहुत सारी चीजें पूनम जी और रीना जी और बहुत सारे लोगों ने, शांति जी ने भी बोल दी हैं, तो मैं शायद उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगी, यू नो, बट मूविंग ऑन। I can't see Shweta. Okay. Can we see her? I can't see her. हमें तो सबको दिख रही है वो। Okay, now I Okay. see her. ठीक है। Yes. Sorry. So, please carry on. yeah. So, as parents, I think one thing that I would like to talk about first is the comparisons, जो कि I think as parents हम anyway face करते हैं, and as children बच्चे भी face करते हैं, I think throughout their life. So one comparison, very common comparison, जो कि sometimes it comes up in conversations, कि पेरेंट्स आपस में एक दूसरे के बच्चे को कंपेयर करते हैं कि अच्छा आपके बच्चे को इतने % डिसेबिलिटी है, मेरे बच्चे को इतनी % डिसेबिलिटी है, एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी अनहेल्पफुल। and because I faced this, तो मतलब I've not said much, but I understand where the person is coming from, मुझे समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे as parents अगर हम एक दूसरे के लिए एक empathic space नहीं create करेंगे, तो I think that will just make life more challenging. तो आई थिंक वो एक चीज है जो हमें कहीं ना कहीं मैनेज करनी है अपने लिए, कि हम अपना कंपैरिजन एंड अपनी प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन दूसरे पेरेंट्स से कितना कोशिश करें कि वो साइड में रहे व्हेन वी वर्क टुगेदर, स्पेशली बिकॉज हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथ देनी है बजाय इसके कि कंपैरिजन करना है। दूसरा पॉइंट एज अ पेरेंट इज अबाउट टेकिंग चार्ज वर्सेस टेकिंग हेल्प, कि ठीक है एज अ मदर हो सकता है मुझे लगता हो कि मुझे अपने बच्चे को बेस्ट केयर देनी है और सब कुछ उसके लिए जो पॉसिबल है करना है, बट आई एम अ ह्यूमन और मैं भी थक जाऊंगी और मेरे भी एस्पिरेशंस हैं, तो कंबाइनिंग माय करियर, माय चाइल्ड, माय पेरेंटिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू, वो हम कैसे एंड मैनेजिंग गिल्ट अलोंग विद दैट, वो कैसे हम करेंगे, एंड वहां पर टेकिंग हेल्प इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, कि अपने आप को ये मान के चलना कि मुझे भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, बट देन मुझे भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एंड वो भी कहना बहुत जरूरी है। एंड अगर एज मदर्स अगर हम में से किसी को भी लगता है कि हम ही सब कुछ करेंगे, तो वो भी एक चैलेंज की बात है, बिकॉज अगर फादर है और फादर एग्जिस्ट करते हैं तो जरूरी है कि वी वर्क एज अ टीम, एंड इनफैक्ट फैमिली में जितने भी लोग हैं, वी लिव टुगेदर, वी हैव टू, हम एक टीम की तरह काम करने से ही आई थिंक आगे बेटर बढ़ पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स द चाइल्ड, बच्चा भी उस टीम का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी लाइफ के लिए सारे डिसीजन ले रहे हैं या मैं ले रही हूँ, बट कहीं ना कहीं पे वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। थर्ड थिंग दैट आई वांट टू से इज दैट हमारे पास सारे आंसर्स नहीं होंगे, ऐसा कोई टाइम मुझे नहीं लगता कि आएगा जब मेरे पास सारे आंसर्स होंगे अबाउट कि मेरे बच्चे की लाइफ आगे चल के कैसे होने वाली है, वो फ्यूचर में और क्या करेगा। सारे आंसर्स
मुश्किल हैं, यू नो। ऑफ कोर्स हम सब कोशिश करते हैं कि हम वो क्रिएट करते रहें, हम हेल्प लेके क्रिएट करें, मिलजुल कर क्रिएट करें, बट कभी कभी होप के साथ ऑफ कोर्स जीना जरूरी है, पर कभी कभी वो क्वेश्चंस बड़े होंगे, और जहाँ पर जैसे आज बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने सुने कि कैसे असिस्टेड लिविंग फोरम एंड बाकी चीजें इमर्ज हो रही हैं, जो बहुत सालों से ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती रही हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इवेंचुअली वी ऑल नो कि हमारे पास सारे आंसर्स मेरे अकेले के पास कभी नहीं होंगे एज अ पेरेंट। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अलाइन कि और जो लोग हैं उनके साथ हम कैसे जुड़े। एंड देन एक पॉइंट जो ऑलरेडी आ चुका है, बट आई वुड स्टिल रिपीट कि बच्चे के बिहेवियर को देख के उसमें ये जज करना शुरू कर देना कि ये इसकी प्रॉब्लम से कैसे जुड़ा है, ये कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ये हो सकता है होता रहा हो, होता रहता हो, बट इवेंचुअली जैसे कि मेरे पहले स्पीकर्स ने भी कहा है कि बहुत सारी चीजें जो उस बच्चे की जिंदगी के आसपास हो रहा है, उसकी जिंदगी में हो रहा है, ये उसका असर भी है। तो कहीं ना कहीं पे वो भी एक्नॉलेज करना है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को भी गुस्सा करने का अधिकार है, कभी कभी वो होपलेस भी फील करेगा, कभी उदास भी होगा, मतलब सब कुछ तो नहीं निकाल सकते हम किसी जिंदगी से, अपनी जिंदगी से भी नहीं निकाल सकते हैं। सो इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ना कैसे है वो शायद बहुत जरूरी है। और कभी कभी फ्यूचर के दूर तक देखना है, जैसे कि मेरे से पहले बोल चुके हैं, एंड वन डे एट ए टाइम भी देखना है, बिकॉज कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ दिन आसान होते हैं, वो कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं, और तब वो दिन खत्म करना और नेक्स्ट डे शुरू करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट गोल होता है। नाउ व्हाइल आई हैव बीन देयर इन द डिसेबिलिटी सेक्टर, रियलिटी जो एक मुझे बहुत क्लियरली रिसेंटली समझ में आई वो ये थी कि ठीक है, फॉर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी सर्विसेज को सीख हम कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम कैपिटल मेट्रो सिटीज में हैं, तो डेफिनेटली शायद सर्विसेज मिल ही जाएंगी, लेकिन हु इज प्रिपेयरिंग द अदर चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे के साथ जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं या उसके साथ जो इंटरेक्ट करेंगे, उन बच्चों को कौन तैयार कर रहा है, उनके सवालों के जवाब कौन दे रहा है, उनको ये कौन सिखा रहा है कि यू नो डाइवर्सिटी इज ऑल राइट, बीइंग डिफरेंट इज ओके। And that is why we started Guinea's Planet, because we decided कि you know कहीं ना कहीं पे we have to build generations from early on, जहाँ पर हम बच्चों को शुरू से conversations में लाएं कि diversity exist करती है, bodies different हो सकती हैं, choices different हो सकती है, behaviors different हो सकते हैं, differences exist करते हैं, and it is okay. So being different is okay. ये हमारा almost like it's a tagline for us, and that is what we do as Guinea's Planet. So हमारे गिनी डॉल इज आवर लीड कैरेक्टर। गिनी और उसके फ्रेंड्स आपस में कैसे लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, उनकी स्टोरीज के जरिए हम वो डिपिक्ट कर रहे हैं। एंड नन ऑफ दीज चिल्ड्रन, चाहे उसको डिसेबिलिटी है नहीं है, इनमें से कोई भी सुपर हीरो नहीं है, कोई भी इंस्पायरिंग नहीं है, रेगुलर लाइफ कैसे जीते हैं वही इनकी स्टोरीज में है। बट ऑफ कोर्स दे आर फन स्टोरीज, बिकॉज बच्चों को बोर तो नहीं करना है स्टोरी सुना के। And parallelly we have workshops for children, and these are for all children, like practicing empathy, being different is okay, acknowledging diversity, you know, understanding disability as diversity, using inquiry and research, तो अपने stereotypes, अपने myths को challenge करना, अपने सवालों के जवाब कैसे ढूंढना, ये सारी चीजें बच्चों को शुरू से सिखाना, उस पे हम ज्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं, ताकि हम एक जॉइंट वर्ल्ड तैयार करें। ठीक है, तो हमारा बच्चा है उसको तो हम तैयार कर ही रहे हैं आगे के लिए, बट हम और बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। So that is the aim that we are working with right now. You know, building a world where nobody is odd one out, and building a world where differences की वजह से किसी को exclude या odd one out नहीं बोला जाए। So that's our journey, and that's वीडियो कॉलिंग आ रहा है। Shweta, I just want other participants to mute themselves, please. सुषमा जी अपने आप को म्यूट कीजिए। सुषमा जी श्वेता कहिए, आप कहिए वो उनका। अच्छा, नहीं मैंने तो एंड कर दिया था, बिकॉज आई थिंक वी आर सपोज्ड टू एंड एनीवे एट 4:30, सो आई थॉट आई एंड नाउ सो दैट जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आई थिंक बाकी लोगों ने भी देने हैं दे पाए। थैंक यू। और जो पेरेंट्स को आप स्किल्स देना चाह रही हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं 2-3 क्वेश्चंस ले रही हूँ। अभी हमारे पास जो सबसे लास्ट में दिख रहा है
Is there any relaxation given by government or any special rights or reservations for children, such as that is given to handicapped in different organizations? So I would like my resource persons to respond, please. Shanti ji, Poonam ji, Neena ji, Shweta. Could you read the question again, please, Ratna? It says, kindly update the parents about the relaxation given to the disabled children by the government. Are there any special rights or reservations given to these children as are given to handicapped in different organizations? मुझे पूरा ये समझ नहीं आया, पर relaxations. Should I answer or is Shanti answer? Shanti, are you answering? पूनम जी आप हैंडीकैप के लिए है, वो ही सभी के लिए Can you hear me? Ma'am, sorry to interrupt me. This was my question. I'm Anu Mehta this side. Can you hear me, please? Yes, yes, yes. Okay, ma'am. I have a Down syndrome child who was in Air Force Golden Jubilee for about 25 years, and now he is attached with the NGO Muskan. Although I know lot many things about the relaxation like income tax and other, my query to you is, since you all are expertise in this field, are there any relaxation from the side of government other than the income tax or the railway facility? Like you do get job opportunities, special reservation quota is there. Because ma'am, Down syndrome children are capable of doing the work if they are assisted with somebody. They are capable. I mean, they can go ahead with appointment. Anuja, you want Shanti ma'am to respond? Hello? Okay, okay. You want Shanti ma'am to respond to this question? Yes, ma'am, I'm waiting. Sure. Okay. Shanti ma'am, please respond to her. हाँ, अनु गवर्नमेंट के तरफ से कंसेशंस अगर आप कहें कि एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो 4% है सब लोगों के लिए who have certain form of disability. तो उसमें बहुत ही छोटा एक कंपोनेंट बनता है हमारे बच्चों के लिए. तो जो पेरेंट्स को कंसेशन मिलता है वो है डिसेबिलिटी पेंशन, पर वो भी जिनकी इकोनॉमिक जिनकी फैमिली में हुआ इकोनॉमिक yes, we are not entitled for that. हाँ, हाँ. तो इस समय अच्छा डेंजर निरामया यू नो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जैसी भी है, बट वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, बट उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी अदर काइंड ऑफ कंसेशन जो कि डाउन सिंड्रोम या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए खास अवेलेबल हो. अच्छा और कुछ नहीं है. Yes, ma'am. There are other questions also, Anuji. Okay. Your child is in Muskan, so we can take this further later. Okay. There's another question from Avi Ranjan. Avi Ranjan is asking what type of education can be given to these children? Poonam ma'am, would you like to respond? Yeah, sure. Thank you, Avi Ranjan, basically children have a right to education both in inclusive schools and special schools. It is up to the parent, माँ बाप या जो परिवार है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे स्कूल में आप डालना चाहते हो अपने बच्चे को. कोई इंक्लूसिव स्कूल में हम लोग तो पहले इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे ज्यादा चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे लोग और बच्चों के साथ भी मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं और जो उनको जरूरतें हैं वो सब लोगों को समझ आती है कि उनको स्पेशल नीड्स क्या है. But special schools are also there. A lot of children may, there's people with visual impairment or some children with intellectual disabilities also may want to go to a special school or early intervention program
first and then go to an inclusive school, so that they learn certain basic skills like their ADLs, or like with visually impaired children, they have to learn Braille, and they have to certain basic skills they learn, and then go to the inclusive school. So both the choices are, yes. Can I interrupt you for a minute? Yes, sure. I just need your advice, since I am also a teacher in a reputed school, and now that the schools have the permission that they cannot deny admissions even to the children with learning disabilities. Right. So in my school also, I found 2 or 3 children with Down syndromes. Right. Now, what do you suggest me, that will it be okay that they should be treated with the normal children? Because obviously their learning I mean, the activities are, yes, the learning disabilities are lesser than the other children. So what do you suggest at Please participant, mute yourself, others. And Anuji, we have another 2-3 minutes. Okay. Just yeah, of course. Is this Anu's question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So of course the child should be in the classroom with other children, get the same inputs, but if the child has needs a certain reasonable accommodation. Okay. Like the child may not be able to read as fast as the other children, or may need the same thing in an audio way, or may need a worksheet instead of writing an essay kind of an answer. So those accommodations are allowed today in the inclusive education system. Yeah. Of course, the child in sports, music, games will be with the other children. Yeah. In the classroom, subjects also will be with the other children. But we must make certain accommodations where the child has a special need, like in reading or writing. आजकल अगर पढ़ नहीं सकते, everything is in audio form also. So it's not such a big problem. In terms of the child comprehending the total amount, it may be the child is only understanding in the beginning. You simplify it. And when we talk about the special needs child, we talk about plain language. How to speak the same thing, jo usme the main point simplified for the person with disability. But of course, the child has a right to be in the same class, same subjects, and do everything with the other children. Thank you, ma'am. And we have last 2 minutes. And there are lots of compliments for the speaker, for the expert. Can I intervene for a moment? Yes, sir. Yes. हाँ. शान जी, हाँ. चीजों पे जो बात हो रही थी, इसमें एक चीज जो मुझे पॉइंट आउट करना है, वो ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो प्राइमरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 इज अलाउड, इज अ राइट टू अ चाइल्ड. लेकिन इन केस ऑफ चैलेंज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये एज बढ़ा के लेटेस्ट एक्ट में 18 कर दिया गया है. तो अब जो राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, दैट इज फ्रॉम द एज 6 to 18. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जितने हायर एजुकेशंस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे ऐसे बच्चों को 5% रिजर्वेशन दिया गया है, whether they are government run institutions or the institutions being sponsored by the government. इन दोनों जगहों पे 5% तक रिजर्वेशन ऐसे बच्चों के लिए दिया गया है. और राइट टू एजुकेशन में ये एज बढ़ाकर 18 तक कर दिया गया है अंडर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो उनके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम जब कहते हैं ना कि पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, तो हमें थोड़ा ये समझना होगा कि उनकी स्पेशल नीड क्या है, किसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से आंसर्स आएंगे. एक जनरल आंसर देना सबके लिए अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी को मान लीजिए सेरेब्रल पॉलिसी है, but intellectual faculties are like any other child, तो वहां पर और तरीके की उसकी स्पेशल नीड है. अगर एक डाउन सिंड्रोम या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है कोई व्यक्ति, तो उसकी स्पेशल नीड्स अलग होंगी. सो एप्रोप्रिएट एजुकेशन
is extremely important to keep in mind, and education is much beyond academic learning. That also has to be kept in mind. Yes, I would like to add one thing here. जी नीना मैम, we are not talking about just the bookish education. We are talking about functional academics. You know, कि आपका बच्चा वैदिक मैथमेटिक्स जानता है, वो doesn't matter. वो किराने की दुकान पे जाके अगर 10 रुपए का सामान 10 रुपए दिए हैं और 8 रुपए लेके 2 रुपए उसको लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या वो मॉल में जा रहा है तो जो वो पढ़ के समझ सकता है कि नहीं, उसको एग्जिट और एंट्री का समझ में आएगा, फायर समझ में आएगा, ये सब भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो एजुकेशन हर लेवल पे है और चलती रहेगी, को लेवल से ना जोड़े। और कई ऐसे हैं जो जैसे ऑटिज्म में है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, कई बच्चे हैं जो कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल में क्लास सेटअप में बैठ के पढ़ सकते हैं। मेरा बच्चा आज 20 साल, मैम आपका नेटवर्क अभी भी मैंने उसको NIOS में एनरोल कर रखा है, वो अभी भी पढ़ रहा है। तो कोई सीखने की लिमिट भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम उनको किताबी पढ़ाई कराना चाह रहे हैं या उसका फंक्शनल यूटिलिटी और एप्लीकेशन कितनी होगी, ये चीज को भी देखना जरूरी है। तो इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ। रत्ना जी मैं भी इसमें यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैम ने कहा है कि हमें ये नहीं देखना है कि बच्चे को बहुत से, जैसे मेरे पास भी बहुत बच्चे ऐसे आते थे कि जिनको राइटिंग वर्क तो आता था, 1 to 100 लिख लिया उन्होंने, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। जी मैम थैंक यू। और आप लोगों के पास इतना रिच एक्सपीरियंसेस है कि ये मुझे लग रहा है टाइम इज जस्ट फ्लाइंग, और हम लोग उसमें से बहुत थोड़ा ही निकाल पा रहे हैं। पर जितना आज हम लोगों ने सीखा है उसमें हमने एज अ पेरेंट होने के लिए क्या चैलेंजेस रहे और किस तरह वो डील किए गए और किस तरह हम औरों को भी सिखा रहे हैं और पेरेंट्स को भी। तो इट इज लाइक समथिंग, यू नो, आई वांट टू एंड ऑन द नोट बिकॉज ऑफ द टाइम कि हार्ड थिंग्स आर पुट इन आवर वे नॉट टू स्टॉप अस but call out our courage and strength. So as parents we need to understand that under diversity there is beauty and strength. तो हम उनको differently able बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी जो वो diverse चीजें हैं उसमें हम अपनी खुशी देखें, खूबसूरती देखें। और बहुत सारे participants, मैम आप लोगों के contact details मांग रहे हैं, तो if you all permit and you want to write, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। रिसोर्स पर्सन्स भी एक दूसरे के एक्सचेंजेस मांग रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। आई वांट टू, आप जो संध्या जी से मिलना है, श्वेता जी से मिलना है, जी नीना मैम जी के तो घर जाना है, बुला नहीं रही है आजकल मुझे ये। तो मैं आपका नंबर शेयर कर तो मैं आप सबका नंबर एक दूसरे से शेयर कर देती हूँ और पार्टिसिपेंट्स के लिए आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट्स में। और इसकी रिकॉर्डिंग भी जी मैं एक बस 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि इन्हीं बच्चों के लिए है और मैंने ही लिखी है। कोशिशें हमारी इन्हें भी लगे, कोशिशें हमारी इन्हें भी लगे, जो है हम, थोड़ा सा फर्क है तो क्या हुआ, अरमा तो वही है। ऑन दिस नोट ये वाला सेशन हम लोग आज कंक्लूड करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सारे पार्टिसिपेंट्स का, सारे मेरे स्पीकर्स का। It has been so delightful कि as a parent मुझे लग रहा है कि there is too much to be done, जो हमें और भी आगे सीखना है। और thank you so much. Thank you रत्ना जी। Thank you रत्ना जी। Thank you शशांक जी। Thank you. मैम मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है, इस ग्रुप में हम लोग कुछ क्या कहते हैं, एक आईडी या कुछ ईमेल बना सकते हैं क्या, जिसमें हम डाउट्स पूछ सकते हैं लेटर ऑन इन फ्यूचर? या व्हाई नॉट। अभी जी एक कॉमन ग्रुप बना दो, व्हाट्सएप ग्रुप। या why I am sharing this, because I got this Zoom ID from some of my colleagues, so I don't know whether how I'll get the recording or where to contact for future queries, because this session has been really useful. Thank you to all the speakers and the person who coordinated this. Thank you so much. Thank you निरंजन। हम क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग को अपने फेसबुक पेज पे डाल देंगे, ठीक है? आप रत्ना सक्सेना गूगल कीजिए, शशांक शेखर कीजिएगा, हम उस पे डाल देंगे, ठीक है? CRN PD पे भी डाल देंगे हम लोग। हाँ वहाँ भी डाल देंगे। आप हमें मेल भी कर दीजिएगा प्लीज। तो मैम आप सबको तो ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स का नाम भी नहीं आ रहा, वो उनका मोबाइल का डिटेल्स आ रहा है,
तो उनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि हु इज द पर्सन. ओके ओके. थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज ग्रेट. आप फेसबुक पेज पे आप करके हमें टैग कर दीजिएगा, मैं शांति जी को भेज दूंगी. मैम कौन सा फेसबुक पेज जाना है? मेरा नीना वाघ के नाम से है. आप मुझे इंडिविजुअली कर दीजिएगा. शशांक जी, you want to say something? No, I'm so thankful. It was great to hear all of them. हमको लगता है पेरेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिला, और सबसे बड़ी चीज ये सीखने को मिली कि ये नहीं कहना है कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से चैलेंज, बच्चा और बच्चों की तरह है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह ही है मेरे लिए. ये बहुत बड़ा लेसन है हम सारे लोगों के लिए. और जो दूसरी चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं जहां भी जाता हूँ, मैं इस सेक्टर में जहां भी बात करने जाता हूँ, आई स्ट्रांगली डिफर टू द वर्ड डिसेबिलिटी. मैं डिसेबिलिटी वर्ड से स्ट्रांगली डिफर करता हूँ. ये यूएन के द्वारा थोप दिया गया, अदरवाइज दे आर नॉट डिसेबल एट ऑल. अगर बच्चे से भगवान ने कुछ ले लिया है तो उसके बदले जरूर भगवान उसको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करता है. और सारे पैनलिस्ट ने, यहाँ तक कि पूनम मैम ने भी कहा कि हर बच्चे की कुछ खूबी है, हमें उस खूबी को डेवलप करना है. ये हर पेरेंट्स को ध्यान में रखना होगा. एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Poonam. Thank you. Bye. Very nice. All the best. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you, All Ratna. the participants, we thank you too. Thank you so much. Thanks. So Thank we are you. closing the meeting, ma'am. Thank you. Okay, thanks. Bye. Okay.